Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So today I have decided three agendas for this video. First, I am going to show you how I make short notes for current affairs or including them in my answer writing for data purpose. So first is that. Then second, I am going to show you what target I have made and what I am going to do tomorrow. And third, I'm also going to do a quick revision with you of what I have learned today so I can also revise it and it may help you also to get over things in a short form. So, first of all, these are my notes that I have made from newspapers. You can see that I have topic wise made notes for all the things that I have found going on in newspaper in the current days, and I can use it in my descriptive answer writing, or I can like get direct questions from it in objective as well or in descriptive as well. So let me just take you through this. Now let me give you an example. For example, if I get any question related to economic growth, be it challenges, be it solution, be it we have done and what are its impacts, so I can write some of the points from this thing and I just have to remember it. I will remember it. I will learn it when the exam comes near. So let's see this point. Export growth through subsidies in unsustainable. दैट मीन्स लाइक गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट पे ऊपर जैसे हमें ट्रेड में सरप्लस चाहिए होता है, इस वजह से हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा अपना बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बट उसमें क्या होता है, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देती हैं और उस वजह से एक्सपोर्ट ग्रोथ एक टाइम के लिए तो बढ़ जाती है, बट गवर्नमेंट वो सब्सिडीज़ बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं कंटिन्यू रख सकती हैं। दे आर गोइंग टू कट आउट एट सम टाइम एंड वहाँ पर जाकर फिर जो हमारी ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा डैम्पन कर जाएगी। इस वजह से हमें सब्सिडीज़ पे फोकस करने की बजाय हमें बेस पर स्ट्रॉन्ग जन बनाना चाहिए। हमारे बेस को, हमारे प्रोडक्शन को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। सो दैट्स द पॉइंट आई कैन इंक्लूड। अनदर एग्जाम्पल इज़ AI इन इंडिया। लाइक AI इंडिया में मतलब कितना ग्रोथ कर रहा है, व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर द चैलेंजेस, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उस पर there are some points like what are the growth prospects and what have we done. So there I can include that Microsoft has invested 3 billion in AI in India. AI को इंडिया में प्रमोट करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने $3 बिलियन हमारे इंडिया में इन्वेस्ट किया है। दैट इज़ अ गुड पॉइंट टू सपोर्ट। लाइक देखो, दीज आर द थिंग्स जो करंट में हो रही हैं एंड इफ़ वी एड दिस इन अवर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें मिलेगा। Another example is India AI मिशन। दिस इज़ अ वेरी करंट हॉट टॉपिक एंड उसके बारे में हम डाल सकते हैं अब किसी भी AI के क्वेश्चन में। इट कैन बी आस्क्ड इन ऐसे राइटिंग, इट कैन बी आस्क्ड इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़। सो लाइक ये लॉन्च हुआ था मार्च 2024 में। देन ये डायरेक्ट गवर्नमेंट फंडिंग देगा AI कंपनीज़ के लिए, इनोवेशन के लिए, प्लांट बेस करने के लिए, किसी भी तरह की चीज़ के लिए डायरेक्ट फंडिंग गवर्नमेंट से आपको मिलेगी। नाउ दिस इज़ समथिंग दैट हैपेंड इन द करंट। A meeting was co-chaired between PM Modi and French President Macron regarding AI। ये भी हुआ था। So then these are some data facts जो हमें अपने आंसर में ज़रूर से डालनी चाहिए। Like India ranks second globally in senior AI professionals। These are, you can just go through how I have made for notes for every of the topic. I am reading newspaper every day and I am just going to make it till my exam. Now, if we talk about the target for today, so let's revise what I have been done. I did quant practice. It was very much good. Now next thing is I did finance fodder. Like देखो fodder एक दिन में 3-4 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, बिकॉज हाउ आई मेक फॉर्डर मटेरियल ना, उसमें इफ़ आई गेट सम टॉपिक तो मैं उसका क्वेश्चन मतलब उसकी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके बारे में पूरा पढूँ, उसके बारे में करंट में क्या चल रहा है, ये क्वेश्चन मतलब क्यों आया, एंड देन करंट में क्या चल रहा है, मैं क्या फैक्ट्स डाल सकती हूँ, क्या डाटा डाल सकती हूँ, क्या मैं एग्जांपल्स दे सकती हूँ, केस स्टडीज़ में क्या डाल सकती हूँ। तो उस वजह से मैं उसके बारे में पढ़ती हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती हूँ उससे रिलेटेड। एग्जांपल अगर मैं दूँ तो आज मैंने एक कॉर्पोरेटिव बैंक्स के ऊपर एक क्वेश्चन देखा था। तो उसका अभी वी ऑल नो दैट PMC बैंक का हमारा इशू चल रहा है, कोऑपरेटिव बैंक्स का। देन मैंने उसके बारे में वीडियो देखा, मैंने देखा कि क्या फ्रॉड्स हुए, स्कैंडल्स हैं, देन उसका रीज़न क्या था, चैलेंजेस क्या है, क्यों हो रहे हैं। फिर मैंने सोचा और फिर जाके मैं अपना फॉर्डर मटेरियल तैयार करती हूँ। तो इस वजह से एक दिन में 3-4 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, बट आई ट्राई टू मेक इट मोर कॉम्प्रहेंसिव एंड लाइक वेरी प्रिसाइज। नाउ
डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस आई डिड 2 क्वेश्चंस टुडे, एक फाइनेंस का एंड एक ईएसआई का। सो फाइनेंस का मैंने दिया था, ओके फाइनेंस का मैंने दिया था कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर, मैंने ईएसआई का विकसित भारत के ऊपर लिखा था। चलो नेक्स्ट फाइनेंस का स्टैटिक। ओके फाइनेंस का स्टैटिक मैंने क्या रिवाइज किया, लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू इट। मैंने आज रिवाइज किया फॉरेक्स मार्केट। सो अगर इसके बारे में जस्ट 2 मिनट में बात कर लें तो फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, इट इज़ एन इंटरनेशनल मार्केट जहाँ पर करेंसी का ट्रेड होता है। ठीक है, इंटरनेशनली वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस, रिटेल इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स वहाँ पर सब करेंसी का ट्रेड करते हैं इंटरनेशनल। इफ समवन वांट्स यूएस डॉलर और समवन पर्सन फ्रॉम यूएसए वांट्स इंडियन करेंसी, सो देन वहाँ पर दे कैन ट्रेड। नेक्स्ट हमने इस पर पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मार्केट कितने होते हैं, लाइक फॉरेक्स मार्केट के अंदर कितनी तरह से हम सेटलमेंट कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट मैकेनिज्म्स। पहले हमारा आ जाता है रेडी और कैश, जिसमें जो ट्रांजैक्शन होता है वो जो ट्रांजैक्शन होगा उसका सेटलमेंट ऑन द डे ऑफ द ट्रांजैक्शन ही हो जाता है। मतलब जिस दिन भी हमारी डील हुई है उसी दिन के एट द एंड ऑफ द डे तक हमारा सेटलमेंट हो जाएगा, लाइक एक्सचेंज हो जाएगा करेंसीज का। देन हमारा सेकंड जो आता है वो होता है टॉम, यानी कि नेक्स्ट वर्किंग डे पे। नेक्स्ट वर्किंग डे होना चाहिए, लाइक नेक्स्ट डे हॉलीडे नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट वर्किंग डे पे हमारा जो भी, अगर मान लो हमारा हम सैटरडे को अगर डील कर रहे हैं तो नेक्स्ट वर्किंग डे हमारा मंडे आता है, नॉट संडे। संडे को नहीं होगा, हमारा मंडे को, नेक्स्ट वर्किंग डे पे हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। देन हमारा तीसरा आता है स्पॉट। स्पॉट पे होगा सेकंड वर्किंग डे, यानी कि डे आफ्टर टुमारो हम इसे कहते हैं। डे आफ्टर टुमारो में हमारा सेटलमेंट हो जाएगा। एंड हमारा फोर्थ है फॉरवर्ड मार्केट। उसमें क्या होगा, एनी डे आफ्टर द स्पॉट डे, मतलब स्पॉट डे का जिस दिन होता है, यानी कि सेकेंड डे, सेकेंड वर्किंग डे, उसके बाद किसी भी डेट को वो होता है तो वो फॉरवर्ड मार्केट में जाएगा, फॉरवर्ड सेटलमेंट उसका होगा फिर। ठीक है, मतलब आप मान लो थर्ड वर्किंग डे होगा, फोर्थ वर्किंग डे, या फिर 10-15 कितने भी दिन बाद हो, अगर वो सेकेंड वर्किंग डे के बाद हो रहा है तो दैट इज़ अ फॉरवर्ड सेटलमेंट। So these are the 4 type of settlement mechanism. नेक्स्ट हम इसके फीचर्स देखा था मैंने। फीचर सबसे पहले ये हाईली लिक्विड होता है, बिकॉज इसमें इंटरनेशनली सारी ही कंट्रीज ट्रेड करती हैं, इस वजह से लिक्विडिटी बहुत होती है। देन हमारा सेकंड आ जाता है डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई भी इसका सेंट्रलाइजेशन नहीं है, कोई भी एक सेंट्रल फिजिकल स्पेस नहीं है जहाँ पर इसका ट्रेड होता हो, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। देन हमारा थर्ड आ जाता है दैट इज दिस वर्किंग 24 आवर अ डे 5 days a week। And then now under this I also studied FEMA, that is Foreign Exchange Management Act. So this is the act in India that talks about forex market. Under the section 2 of this act, it talks about forex market. There were different clauses in this act that talks about the transactions that need to be included in forex market. So that's all. Now let's move forward. Now let us make target for tomorrow. Tomorrow is 19. First आई एम गोइंग टू डू क्वांट प्रैक्टिस। आई एम गोइंग टू लिस्ट कि मैं कौन से मॉक्स दूंगी और कितने दूंगी। सबसे पहले मैं टेक्स्ट बुक का SBI PO मेंस के मॉक्स दूंगी एंड उसको आई विल गिव 2, बिकॉज उसका टाइम लिमिट थोड़ा अलग होता है, तो उसका मैं 2 ही दूंगी, बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू गेट क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव उससे। नाउ नेक्स्ट RBI ग्रेड B फॉर एडुटैप, उसको मैं
तो बिकॉज उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ मॉक्स हैं, उसमें 10 सेक्शनल मॉक्स हैं एंड उसमें से मैंने शायद 7 दे चुकी हूँ, तो मैं 2 दूंगी ताकि मैं आगे के लिए भी रखूँ कुछ। नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ आई विल गिव अ रीजनिंग का भी मॉक कल, थोड़ा रिवाइज हो जाए, वो भी एडुटैप वाला ही। नेक्स्ट मैं फाइनेंस के फॉर्डर बनाऊंगी एंड आई एम मेकिंग अ टारगेट ऑफ 4 क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट फाइनेंस का आई एम गोइंग टू डू रिवीजन एंड मैं क्या टॉपिक कल पढ़ूंगी, आई एम गोइंग टू स्टडी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। आई एम गोइंग टू रिवाइज इट, मैंने पढ़ रखा है पहले से, आई हैव जस्ट टू रिवाइज इट। भूल जाते हैं, फाइनेंस इज समथिंग जो मैंने कभी नहीं पढ़ा है, मेरा बैकग्राउंड कभी फाइनेंस से रिलेटेड नहीं था एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली स्टडिंग इट, तो इस वजह से मैं भूल जाती हूँ। आई नीड टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। एंड नेक्स्ट टॉपिक आई एम थिंकिंग कि मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ूंगी। Yes. So this is the target for tomorrow. I hope I complete it. See you. Bye bye.